Good morning, students. Today we start with example 11th. If A is any element of a group G of order n, then show that order of A raised to power k is less than equal to order of A for every integer k, and also order of A is equal to order of A raised to power k into GCD of n and k. देखिए solution. Since A belongs to G, therefore A raised to power k also belongs to G. आपने result किया था कि integral power of an element also belongs to G. As order of A is equal to n, so by definition of order of element, A raised to power n is equal to E. Now raising power k on both sides, and पावर्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी n इंटू के, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a raised to power k raised to power n is equal to e. Again, by definition of order of an element, we can say order of a raised to power k is less than equal to n. ठीक है, और n क्या था, ऑर्डर ऑफ a था, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ a रेज टू पावर k इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a. ठीक है, लेट d बी द जीसीडी ऑफ n एंड k का हमने जीसीडी क्या ले लिया, d ले लिया. Then by definition of GCD, there exist two integers k1 and k2 such that n is equal to dk1 and k is equal to dk2 where k1 and k2 are prime. ये आप नंबर थ्योरी में पढ़ चुके हो already. Suppose order of a raised to power k is equal to m. Then by definition, a raised to power k whole raised to power m is equal to identity, means a raised to power mk is equal to e. This implies order of a divides mk. This implies order of a क्या था, n था. This implies n divides mk. ठीक है. This implies dk1 means n की वैल्यू थी, dk1 divides m dk2. यहाँ जो हम कह रहे हैं ये n की वैल्यू थी ना ऊपर dk1, ये रहा ऊपर dk1 और k की वैल्यू थी dk2, तो यहाँ हमने n की और k की जस्ट वैल्यू पुट की है. Now this implies k1 divides mk2, but k1 and k2 are co-prime, so k1 divides m. Again, a raised to power k raised to power k1 is equal to k की वैल्यू पुट कर दी dk2, तो ये आ गया a dk1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो dk1 raised to power k2, और dk1 क्या था n, a raised to power n identity because order of a is n, so we get this is equal to identity. So order of a raised to power k divides k1, or order of a raised to power k क्या था, m, so m divides k1. So from equation 1 and 2 we can say m is equal to k1. Now order of a is equal to n is equal to k1 d, and this is equal to md. This is equal to order of a raised to power k into gcd of n and k, because d is gcd of n and k, and m is the order of a raised to power k. Hence we get the result, order of a is equal to order of a raised to power k into GCD of n and k. Corollary है, if n and k are co-prime, that is GCD of n and k is 1, then order of a raised to power k is equal to n, which is equal to order of a. ये एक्सरसाइज 1.2 के ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो हैं बिल्कुल सेम वही हैं जो हम एग्जांपल्स में किए, सिर्फ एक या दो क्वेश्चंस ऐसे हैं शायद जो आप नहीं कर पाओगे. आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन है एक, तो जो भी ये क्वेश्चंस हैं जो आपसे सोल्व ना हो तो आप वो मुझे मैसेज कर देना, मैं वो आपको सोल्व करके दे दूंगी वो क्वेश्चंस. नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लेक्सेस एंड सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप. देखो कॉम्प्लेक्स क्या है, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स ऑफ अ ग्रुप G. जो हमारा ग्रुप G है उसका अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स बोलेंगे. नेक्स्ट डेफिनेशन है सब ग्रुप, कि जो हमने ये कॉम्प्लेक्स कंसिडर किया है ये सब ग्रुप कब बनेगा. अब सब, क्योंकि वो सबसेट है तो सब तो हो गया, और वो सब ग्रुप कब बोलेंगे, अगर वो ग्रुप की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता हो. तो लेट G be a group with respect to the binary operation star and H be the subset of G such that H is also a group with respect to same binary operation star. H जो G का सबसेट है, अगर वो H क्या बन जाए, ग्रुप बन जाए with respect to the same binary operation which is defined on G, then H is called subgroup of G. Next है a non-empty subset H for group G is said to be subgroup of a group G if the composition in G is also a composition in H, and for this composition H is itself a group. Just repeat की ये definition यहाँ हमने, कि कोई भी non empty subset H G का वो subgroup कब होगा, अगर H जो है क्या बन जाए, again a group बन जाए with respect to same binary operation which is defined on G. Next note है G and identity.
सिर्फ आइडेंटिटी नहीं, इसको हमने करली ब्रेसेस में लिखा हुआ है, तो ये आपका अब क्या बन चुका है, एक सबसेट बन चुका है जी का। तो जी एंड आइडेंटिटी means this subset are called trivial or improper subgroups of G. G का खुद का, जैसे आप पढ़ते हो कि कोई भी अगर G कोई आपका सेट है तो वो अपना सबसेट भी है, ऐसे ही G जो है वो सब ग्रुप है G का, और जो ये आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन करता हुआ जो आपका सबसेट है वो भी G का क्या है, सब ग्रुप है। और इनको हम कैसे बोलते हैं, दीज आर ट्रिवियल सब ग्रुप या फिर इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ G. Any subgroup other than G and subgroup containing identity only is called a subgroup, is called a sorry proper subgroup of G. इन दो सब ग्रुप्स को छोड़ के बाकी जो भी जितने भी सब ग्रुप्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सब ग्रुप्स बोलेंगे जी के। एग्जांपल्स देखो, फर्स्ट एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज अ सब ग्रुप ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन। अब जो आपका ग्रुप है वो तो क्या है, इंटीजर्स, और सब ग्रुप क्या लिया, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। ये क्या बनता है, एडिशन के रिस्पेक्ट में आपका क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। मीन्स वैसे तो नोटेशन जेड यूज करते हो आप इंटीजर्स के लिए, और इवन इंटीजर्स के लिए हमने यहाँ क्या नोटेशन यूज किया, जेड 2 के। मीन्स इसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, 0 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, और लेफ्ट साइड में -2 -4 -6 अप टू सो ऑन। आप चेक कर सकते हो, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लेट जी, दिस इज अ क्वार्टरनियन ग्रुप कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स एंड बाइनरी ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन। ये आपका ग्रुप बनता है, आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में शो भी किया था। देन H कंटेनिंग एलिमेंट 1 एंड -1 इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ये आपका सब ग्रुप बन जाएगा G का। नेक्स्ट है द मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स इज अ सब ग्रुप ऑफ द मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप ऑफ ऑल नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। ये भी आपने एग्जांपल किया था, सेट ऑफ all non-zero rational numbers is a group with respect to multiplication। अब यहाँ हम इसका सब ग्रुप देख रहे हैं, तो सब ग्रुप में कौन सा लिया आपने, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का जो आपका सेट लोगे वो क्या बनेगा, सब ग्रुप बनेगा। आप चेक करके देख सकते हो, मींस पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का जो सेट होगा वो अपने आप में अगर ग्रुप बन जाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, तो वो नॉन जीरो रैशनल नंबर्स का क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। ZQR ऑल सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप सी। ये ZQR आपको पता है सबसेट है सी के, और सी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मीन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, ये ग्रुप है। और अगर ये भी आपके ग्रुप बन जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये क्या होंगे, इसके सब ग्रुप होंगे। ठीक है, आपको पता ही है Z तो ग्रुप बनता है आपका विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, Q भी बनता है और R भी बनता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।